ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ 70 ਵਿਛਾਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 16,240 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 25,420 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 85 ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ IT ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 85 ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ पहुंचे पुलिस अधिकारी तक की कुछ कहना, किस तरीके से इन्होंने काबू किया गया, और सुनते हैं उन्होंने। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय DGP साहब और माननीय CP पंचकुला श्री शिबाज कबीराज सर के शुरू से साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो भी एक्शंस रहे हैं उनको लेकर बहुत ही ज़ोर रहा है। तो उसी के चलते हुए कल पंचकुला पुलिस ने जो कि हमारी 5 से 6 टीम्स, जो कि एक टीम हमारी SHO साइबर लीड कर रहे थे, एक टीम इंचार्ज क्राइम 26 और तीसरी टीम इंचार्ज डिटेक्टिव हमारे SHO साइबर, SHO विमेन और स्टेट साइबर से लेके हमारे ASI अंकुश और साइबर एक्सपर्ट श्रीमती मनीषा, और साथ में ही हमारे SHO चंडी मंदिर श्री रामपाल जी, इन टीम्स के द्वारा हमारे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर सेक्टर 22 के IT पार्क में रेड की गई। तो रेड के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर फेक कॉल सेंटर्स चल रहे थे। उन फेक कॉल सेंटर्स के थ्रू ये जो भी लोग हमने पकड़े हैं ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जो कि नागरिक जो बाहर देशों में बैठे हुए थे। मनप्रीत जी, बात करें, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं या एक ही नाम से चल रही हैं? नहीं, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं जी। जो पहला कॉल सेंटर है ये सर्टिस IT सर्विसेज कंपनी के नाम से था, और दूसरा आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक जो तीसरा कॉल सेंटर था वो एक डिफरेंट कंपनी के नाम से। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी गिरफ्तारी तो हम कर रहे हैं। इसमें जो मेन हमारे मुख्य आरोपी हैं वो जो हैं वो आपको बता दिया जाएगा, बट इसमें जो टोटल इन्वॉल्वमेंट अभी आया है वो 85 इंडिविजुअल्स का आया है। तो कौन कौन सी कंट्री के लोगों को टारगेट करते थे और क्या रहता था इनका तरीका जो फ्रॉड करने का? जो ये तीनों कॉल सेंटर्स हैं इनका मॉडस ऑपरेंडी तीनों का डिफरेंट था। ये तीनों आपस में लिंक नहीं थे, और ज़्यादातर अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है US के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड सामने आया है। बाकी और कंट्रीज़ के साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो हम पता करेंगे। अगर मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो जैसे कि जो कॉल सेंटर 1 हमारा जहाँ पे हमने रेड करी है, जो सर्टिस IT सर्विसेज के नाम से है,
वहाँ पे ये कस्टमर सपोर्ट बनकर एक इनकी टीम बैठती है और वहाँ पे बाहर बैठे नागरिकों को ये जो उनकी OTT सर्विसेज है, जैसे कि नेटफ्लिक्स और जो OTT सर्विसेज है या बैंक सर्विसेज है, उनके रिगार्डिंग उनको ये बहला फुसलाकर उनको ये बताते हैं कि जी आपकी ये सर्विस डिसेबल कर दी गई है, तो अगर आपको ये सर्विस अपनी दोबारा से चालू करवानी है तो आप फ़लाने लिंक पर क्लिक करें, या ये जो भी हमारी आपको सर्विस रिन्यू करवाने के लिए हमारे बैंक जो मुलाजिम है उससे बात करें। सर ये लोग विदेश में बैठे लोगों से ही ठगी करते थे या इंडिया में भी? वो अभी हमारी जांच का विषय है, वो हम अभी सर्च कर रहे हैं कि क्या कोई हमारे इंडियन नेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। कॉल सेंटर जो सर्टिस IT सर्विसेज जो कि पहला कॉल सेंटर है, वहाँ से 85 लैपटॉप्स, 62 मोबाइल फ़ोन्स और 8,40,000 ये जो कैश की रिकवरी हुई है। जो दूसरा है आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इससे 62 लैपटॉप्स, 60 मोबाइल फ़ोन्स और 73,176 कैश। और जो थर्ड हमारा कॉल सेंटर है, इससे 18 मोबाइल फ़ोन्स, 21 CPU, 1 लैपटॉप और 3,20,000 ये रिकवरी हुई है। तो सर आगे की क्या इन्वेस्टिगेशन की कोई डाटा मिला है इनके कंप्यूटर से, और कितने लोग इस टीम में काम करते थे, और पीछे इसके कौन था सर जो पूरा ये रैकेट चलाते थे? इसमें अभी तक जो हमने 85 इंडिविजुअल्स राउंड अप किए हैं, तो हमारा जो पहले जो कॉल सेंटर है वहाँ से 14 इंडिविजुअल्स राउंड अप हुए, दूसरे में से 28 और तीसरे में से 43 इंडिविजुअल्स राउंड अप। सर क्या शेयर मार्केट के प्लीज़ एक एक करके पूछ लीजिए। फ्रॉड हो रहा था यहाँ पर? अभी ये जांच का विषय, अभी तक ये अभी सामने क्या नहीं है। स्पूफ कॉलिंग का भी इस्तेमाल करते थे ये भी अभी जांच का विषय। बेसिकली हमें जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये फॉरेन नेशनल्स के साथ ठगी कर रहे थे, कुछ सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज के नाम पे, कुछ ये डिश टीवी कि हम आपके डिश टीवी का रिचार्ज करवा देंगे, कुछ उसमें सेक्सटॉर्शन का भी सामने आया है, और कुछ वहाँ पे जो ओबामा हेल्थ केयर के नाम से ये इंश्योरेंस कंपनी बन के इंश्योरेंस देने के नाम पे भी उनसे ठगी कर रहे थे। सर बात करने के लिए साइबर क्राइम को लेकर उसके अंदर भी इनकी कोई अहम भूमिका नजर आएगी, जैसे साइबर फ्रॉड किया जाता है कि पुलिस वाला अधिकारी बन गए या कुछ ऐसा भी कुछ है? वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो भी अभी हम नहीं बता सकते। शहर के बीचों बीच IT पार्क है, वहाँ पर ये कर रहे थे, और एक पूरी बिल्डिंग का जो फ्लोर था वो यूज़ किया था। कब से ये कर रहे थे, तो पहले सूचना नहीं मिली जो साइबर क्राइम? देखिए, लंबे समय से? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि अभी हम टाइम तो नहीं बता सकते कि कब से कर रहे थे, बट जब भी हमें हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन मिली, हमने तुरंत इस पर एक्शन लिया, और आगे भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसा अगर कोई साइबर क्राइम यहाँ चलेगा तो हम रेगुलर रेड्स करेंगे, और ये हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि हमारे पंचकुला शहर में ऐसा कोई कॉल सेंटर चले। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये? सर महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, महिलाओं का काम क्या था कॉल सेंटर में? देखिए, ये भी एक पूछताछ का विषय कह लीजिए, बट जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया वो यही आया है कि या तो वो सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज की उनको कॉल करके एज अ कॉलर बात कर रहे थे, वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाती, क्लोजर एक नाम के आदमी पे वो उनसे सेटलमेंट करता था कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, तो कुछ अलग अलग बेंचेस पे अलग अलग सिस्टम्स पे ये बैठे थे, तो वैसे ये काम कर रहे थे। आरोपी में कोई विदेशी नागरिक भी शामिल है? अभी तक हमारी जांच के विषय में नहीं है। ओनर सर कौन है इनका? ओनर भी गिरफ्तार हो चुके हैं, सारे एम्प्लॉइज हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ इसमें से मैनेजर है, कुछ इसमें से ऐसे भी है जिनका बहुत मेजर रोल आ रहा है, बट ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो अभी हम आपको ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे। यूएस के अलावा और भी कोई कंट्रीज में इनके? वो भी अब हमारी जांच का विषय है, बट जब भी हम इसमें पुख्ता सबूत आ जाएंगे किन किन कंट्रीज़ में इन्होंने फ्रॉड किया, तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में करवाते थे जो ठगी के पैसे थे, या अलग अलग अकाउंट थे? देखिए, अभी तो कल ही हमने इसका पर्दाफाश किया है, तो जब भी हम इसमें बैंक डिटेल्स में जाएंगे, इनके सिस्टम्स में हम जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम चेक करेंगे, तो वो जब भी निकल के आता है हम आपसे शेयर करते हैं। सर जैसे ज़्यादा बड़े मतलब लोग पकड़े गए हैं, ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, तो इनमें से सबको पता था कि वो साइबर फ्रॉड ही कर रहे हैं या एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली मैम, थोड़ी बहुत नॉलेज तो आई थिंक इनको होगी, बट एक बारी हम इनसे पूछताछ करके वो वेरीफाई करेंगे कि क्या इनकी नॉलेज में ये पूरा था कि ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, या ये एक इस बहकावे में थे कि ये किसी IT कंपनी में काम कर रहे हैं। तो सर जो फ्रॉड का जो पैसा था वो इंडिया के बैंक्स में हो रहा था, या जो हाँ, डेफिनेटली ये भी हम आपसे एक बार शेयर करना चाहेंगे। अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है वो एक IT सेंटर से ये सामने आया है कि ये जैसे कि वहाँ से फ्रॉड करके पैसा गिफ्ट कार्ड में ट्रांसफ़र वहीं पे US में कर लेते थे, तो वहाँ पे भी इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जो वहाँ से पैसा यहाँ हवाले के थ्रू भेजता था
और यहाँ से ये कैश में हवाले के थ्रू पैसा कलेक्ट करते थे। कितने पढ़े लिखे लोग हैं? मुखिया जो है वो विदेश में अभी तक हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड सबका वेरीफाई नहीं किया, तो करते ही विल शेयर। माइंड है हाँ जी, जो कंपनी है उनके ऑनर का किसी का पता चला सर? नहीं अभी तक तो हमने इतना पता चला है कि कौन कौन इसमें मेन लीड कर रहा है, और उसकी अभी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वो ओनर है या वो मैनेजर है या वो एक एम्प्लॉय था। सर ज़्यादातर लोग की मास्टरमाइंड की कोई बाहर भी बैठकर जो इनको लीड कर रहे हैं। ये भी अभी जांच का विषय है जी। कितना फिगर होएगा इसका, कितने अमाउंट वगैरह सर? ये तो अब आप खुद देख लीजिए कितने की इसकी अमाउंट होगी, बट हाँ, बट लैपटॉप्स महंगे हैं, मोबाइल्स जिसमें काफ़ी आईफोन्स हैं। कैश कितना? कैश आपको बताया कि अराउंड 1 से 8,20,000, 1 से कुछ 3,20,000 और 1 से आपका आया 73,176। सर कोई और भी स्टेटमेंट के ब्रांच है या मतलब जो ये अभी तक हमने कुछ इनसे अभी निकल के सामने नहीं आया, बट डेफिनेटली पूछताछ के दौरान हम ये वेरीफाई करने की कोशिश कहाँ के रहने वाले लोग हैं? हाँ जी, जो कार्य कर रहे हैं अंदर कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ ज़्यादातर तो वैसे तो इंडिया के ही है, कुछ ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं, कुछ लोकल्स भी हैं। टाइमिंग क्या रहती है सर इनका जो कॉल सेंटर चलता है? अभी तक जो हमें इनिशियली पता चला है ये ज़्यादातर रात को ही काम करते थे। सर ज़्यादातर एनसीआर में ऐसे कॉल सेंटर चलते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इनके और कॉल सेंटर कहीं और किसी और स्टेट में? नहीं, डेफिनेटली होंगे, हम इससे मना नहीं करते कि नहीं होंगे, बट हमारा जो पंचकूला पुलिस का ये स्टेप है वो ये शो करता है कि हम आगे से यहाँ पे ऐसा कोई भी टॉलरेंस नहीं करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई फेक कॉल सेंटर चला रहे हैं और साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, और इसमें हम रेगुलरली अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थ्रू के कह लीजिए या हम रेगुलर रेड्स के थ्रू कह लीजिए, हम ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई साइबर फ्रॉड ना हो। सर तीनों कॉल सेंटर में महिलाओं की क्या संख्या, कितने लड़कियाँ पकड़ी गई? ये अभी हमने इंडिविजुअल राउंड अप किए, अभी संख्या प्रॉपर डिटेल हमारे पास नहीं है, तो हम आपके साथ जब भी आते हैं हम शेयर करें।